Hello guys, we will be doing midpoint theorem today from quadrilaterals class 9th. Hello Yash, Yes, sir. करें स्टार्ट? Yes, sir. चलो, तो midpoint theorem का statement क्या कहता है? The statement says the line segment joining the midpoints of two sides, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. यही कहता है? The line segment joining the midpoints of two sides is of a triangle is parallel to the third side. ये midpoint theorem है. मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें टू साइड्स का मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स हैज टू बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. यही कह रहा है. Yes, sir. ये प्रूफ करेंगे हम. तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या होगी? गिवन कंडीशन इज E and F are midpoints. Yes, sir. यही है गिवन कंडीशन. E and F are midpoints. ये में E and F midpoints है and EF is parallel to BC. ये हमें प्रूफ करना है. साथ ही हम इसके साथ एक और चीज प्रूफ करेंगे that EF is half of BC. क्या प्रूफ करेंगे? EF is What? we will Yes, prove sir. That EF is EF half is of parallel BC to BC. and EF is half of BC. So we are given Yes, sir. that triangle ABC in which EF is E and F are midpoints of AB and AB AC and AC. respectively. ठीक है, ये Yes, हमें sir. गिवन है और हमारा कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि ज्वाइन EF थ्रू C, ड्रॉ पैरेलल CD पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग EF प्रोड्यूस्ड एट D. मतलब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे? आप इसे आगे बढ़ाएंगे. आप CD को एक लाइन बनाएंगे, एक CD लाइन बनाएंगे जो AB के पैरेलल होगी. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है. ओके. एंड EF को एक्सटेंड करके इस पे इंटरसेक्ट करेंगे अप टू D. क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now we have to prove that EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC. ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है हमें. Yes, sir. EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC. करें प्रूफ? Yes, sir. चलो, वही ट्राइंगल, वही लाइंस एक्सटेंड हो गई, प्रूफ करते हैं. Let us look into triangles AFE and CFD. कौन कौन से ट्राइंगल्स देख रहे हैं बेटा हम? AFE and CFD. AFE and CFD. अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है. पहले तो ये देखो, Or in this equal, गिवन कंडीशन क्या है? क्या मतलब? गिवन कंडीशन क्या क्या है? हमारी जो गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या क्या इक्वल है? E and F are midpoints. midpoint से क्या होता है? So that AF and FC are Equal. and Very that- good. So triangles we are considering are this AFE, these two triangles. Yes, sir. Yes. Yes, And sir. this triangle. These two triangles we are considering. तो इसमें AF is equal to FCA. Yes, sir. First condition. Second condition, can I see these vertically opposite angles? Yes, sir. Yes. Third condition would be, अब देखो CD is parallel to AB. अब ध्यान Yes, से ये sir. ऐसा कुछ बना रहे हैं, Yes, sir. ऐसा कुछ बना रहे हैं. ध्यान से, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है. तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? दिस एंड दिस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So यस यस. angle A and angle C. हाँ, तो पूरा नाम लेंगे हम, एंगल EAF एंड एंगल FCD.
Yes, sir. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे. Yes, sir. Clear? So what we will write, first of all, vertically opposite angles are equal. Angle AFE is equal to angle CFD. Yes, sir. Then AF is equal to CF. So what? AF is equal to CF given, और given में क्या है? Yes, आप यहाँ पे sir. given की जगह ये भी लिख सकते हैं, given that F That's is the because that F is the midpoint midpoint of AC. of AC. Clear है? Or that F bisects AC. बाइसेक्ट नहीं करता बेटा, बाइसेक्ट करने के लिए लाइन होनी चाहिए कोई, पॉइंट Okay, बाइसेक्ट okay. नहीं करते. ओके, ठीक है. तो AF is equal to CF because F is the midpoint of AC जो given है हमें, and angle FAE is equal to angle CD, alternate interior angles. Yes, sir. कोई इशू यहाँ पे No, sir. नहीं. तो कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंसी हो गई? Or ASA. ASA, very good. So these are congruent by ASA congruency criterion. Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, ये sir. दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. और जैसे ही हमें पता लगा कि ये ASA से कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या कहा कि चलो मान लिया ये ASA से कॉन्ग्रुएंट है, हटा दो सब, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंसी से क्या पता लगता है हमें? So क्या? कॉन्ग्रुएंसी से क्या पता लगता है बच्चे? फिर हमको पता चलता है that two triangles are very similar. वेरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंसी से हमें उसकी साइड्स और एंगल्स के बारे में क्या पता लगता है? So that वो equal होते हैं. इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर Yes, sir. इक्वल. तो अब यहां Yes, से sir. अगर ध्यान से देखूं तो मैं बाय यूजिंग सीपीसीटी का यूज करके वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल ये कह सकता हूं कि AF इज इक्वल टू FC, ये तो गिवन ही था. मैं ये कह सकता हूं दैट AE इज इक्वल टू CD. AE is equal to CD. Can I say that? So एक मिनट. So or by CPCT. Yes, sir. By CPCT, I can say that. Yeah. Also, I can say that angle AEF, ध्यान से सुनना, एंगल AEF is equal to एंगल CDF. So एक मिनट. एंगल So AEF is equal to एंगल CDF. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. कह सकते हैं. Yes, ये दोनों sir. CPCT से आए हैं, Yes, sir. दोनों. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हमने CPCT से एक रिजल्ट लिया, AE इज इक्वल टू CD, ये भी CPCT से था. Yes, sir. और एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF. अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं. एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF जब हमने लिया और जब हमने AE इक्वल टू CD लिया तो हमारे पास कोई इशू नहीं था, सिर्फ CPCT से डायरेक्टली आ गया ये. ठीक है, अब ध्यान से देखो, Yes, sir. AE CD के इक्वल है. Yes, sir. है. क्या EB AE के इक्वल है? Sir, क्या? EB या BE, दिस वन, EB. Yes, sir. ये AE के इक्वल है क्या? Yes, sir. Because E is the midpoint. तो हम लिख सकते हैं since E is midpoint of, But how is that relevant? बताता हूं, AB. तो I can say that AE is equal to EB. Yes. So yes, sir. AE is equal to EB. अब जब AE equal to EB हमने कर दिया, AE equal to EB क्या कर चुके हैं? हम कर चुके हैं ना AE equal to EB, और AE equal to CD भी है. तो मतलब CD equal to EB हो गया कि नहीं हो गया?
Yes sir, हो गया. ठीक है. ये एक चीज. ऑल्सो इन एंगल्स का यूज कर सकते हैं, इन एंगल्स को यूज नहीं भी करेंगे तो हमने तो बाय कंस्ट्रक्शन we said CD is parallel to AB. Yes sir. है ना. Also we said CD is parallel to AB. अब इस पूरे साइड के अगर पैरेलल है तो उसके छोटे पार्ट के तो पैरेलल हो गई. Yes sir, होगा. ठीक है. तो मैं ये कह सकता हूँ since it is parallel to EB, CD is also parallel to EB and equal to EB. तो अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? तो क्या? In a quadrilateral, if one pair of opposite sides is equal and parallel it is called a parallelogram. तो Yes bro. EBCD is a parallelogram. Parallelogram. अब ध्यान से देखो, EBCD एक पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह सकता हूँ implies that EF is parallel to BC. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. Yes sir. एक पार्ट प्रूफ हो गया. हो गया कि नहीं? फिर एक मिनट. EFBC because EBC. Yes sir. देखो EBCD एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया तो ये Yes, साइड sir. के पैरेलल हो गई अपने आप. तो मैं Yes कहता sir, हो हूँ गया. तो पहले ये कह दूं, इसमें पहले ये कह दूं that ED is parallel to BC और EF parallel to BC. बात एक ही है क्योंकि Yes वो sir. एक्सटेंडेड लाइन है. और आई कैन ऑल्सो से कि ED is equal to BC because opposite sides of parallelogram are also equal. ED is equal to BC. Yes sir. Yes. और ये जो हमने कॉन्ग्रुएंसी करी थी इसके CPCT से ये भी निकलता है that EF is equal to FD by CPCT. Yes sir. है ना. अब ध्यान से देखना, EF plus FD is equal to ED. Yes sir. EF plus FD का मतलब 2 times EF because they are equal. So क्या? देखो बेटा, EF और FD का सम ED है ना. Yes sir. है ना. और EF और FD इक्वल भी है तो मतलब मैं इसको EF plus FD को 2 times EF लिख सकता हूँ. Yes sir. है ना. विच इज इक्वल टू ED की जगह मैं BC रख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. Yes sir. तो आई कैन से दैट EF is also equal to half of BC. Yes sir. Yes. समझ में आ गया अच्छे Yes से. sir. पहले Yes, हमने क्या sir. किया, हमने करा कि CPCT से ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है CPCT से, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल पहले से थी. तो इफ टू साइड्स आर इक्वल टू द सेम साइड तो EB विल बी इक्वल टू CD. Yes sir. EB और CD इक्वल हो गए. तो जब EB और CD इक्वल हो गए और बाय कंस्ट्रक्शन दोनों पैरेलल हैं तो EBCD एक पैरेललोग्राम बन गए. Yes sir. और जब ये पैरेललोग्राम बन गए तब हमें पता लगा कि BC और ED ये दोनों पैरेलल हो गए. तो हमारा एक पार्ट तो प्रूफ हो गया कि EF इज पैरेलल टू BC. Yes sir, हो गया. दूसरे पार्ट से पता लगा कि BC इज ऑल्सो इक्वल टू ED बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. यस. और जब BC इज इक्वल टू ED है तो मैंने देखा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो EF इज ऑल्सो इक्वल टू FD. Yes sir. और ED जो है वो संयोग से इन दोनों का सम ही है EF और FD का.
तो क्या? EF प्लस FD इज इक्वल टू ED है ना। यस सर। अब ED BC के इक्वल है, EF FD के इक्वल है, तो 2 टाइम्स EF इक्वल टू BC आ गया। ED Yes, की sir. जगह BC रख दिया, FD की जगह EF रख दिया, ये आ गया। बस ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो हमने क्या प्रूफ Yes, कर sir. दिया कि बाय CPCT DF इज इक्वल टू EF एंड AE इक्वल टू CD। Yes, sir. AE इक्वल टू CD हो गया, तो BE इक्वल टू CD भी हो जाएगा इक्वेशन 1 का यूज करके, CPCT का, Yes, sir. है ना। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BCDE। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला? BCDE। Yes, sir. BCDE. Yes, इन sir. क्वाड्रिलेटरल BCDE, just give me a second. Yes, sir. तो इन क्वाड्रिलेटरल BCDE, in this quadrilateral BCDE, ये वाला quadrilateral BE is equal to CD and B is parallel to CD by construction, therefore BCD is a parallelogram. Yes, sir. और इससे पता चला कि BC is parallel to AD by opposite sides of parallelogram, तो BC is parallel to EF हो गया, प्रूफ हो गया। Yes, sir. अब इसी तरीके से ED is also equal to BC, opposite sides of parallelogram, half of ED is equal to half of BC, तो BC is and BC is parallel to EF and BC is EF is equal to half of BC। ठीक है, Okay, sir. आप इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं EF प्लस FD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू ED एंड 2EF इक्वल टू BC बाय 1 and 3। ये थर्ड इक्वेशन लिख देंगे अगर, Yes, sir. तो हम यहाँ से कह सकते हैं EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये भी एक ठीक प्रूफ है, ठीक है, इजी प्रूफ है थोड़ा सा। Yes, sir. समझ आ गया? कोई इशू आया यहाँ तक? No, sir. तो ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है, इसमें आपने दोनों पार्ट प्रूफ करे दैट BC इज पैरेलल टू EF या EF इज पैरेलल टू BC एंड Yes, sir. EF इज हाफ ऑफ BC। और EF क्या लाइन थी जो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। Yes, sir. क्लियर? कोई डाउट अभी तक? No, sir. नहीं? तो आई थिंक मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच फॉर Yes, sir. लिसनिंग। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू।